Hello students, how are you? Hope you are fine at your places. So our next topic is data handling using pandas part 2. Students, in this section we will discuss descriptive statistics which we already discussed, and I have explained this topic in detail. So there is just for introduction we will discuss again it, then data frame operations, and third topic is handling of missing values. These are the three topics which we will discuss today. So let me start with descriptive statistics, which you have done already. So let me start our topic with descriptive statistics. Students, in descriptive statistics, we discussed all aggregation functions. In Python Panda, there is ability to manipulate some statistical data and calculate results of various statistical operations. It has a wide range which is used in data science library and offers many useful statistical and aggregation functions. Statistical methods help in understanding and analyze the behavior of data. In this section, we already discussed common statistical and aggregated functions. You can see the list: maximum function, which will use to find out the maximum value in a data set, then minimum to find the minimum value in a data set for a particular column or row, then count. This method is used to count the rows in a data set, then sum to find the sum of a particular column in a data set, then mean to find the average values, median, mode, standard and variation. All these methods we already discussed in previous lectures, so there is no need to explain this topic again. If you want to see it, and then you can check my previous YouTube lecture on descriptive statistics. So let we move to our next topic is data frame operations. Students, on data frame we can apply different operations like aggregation. We apply aggregate methods on data frame. These aggregate methods, maximum, minimum, we can apply on data frame. Then group by operation on a data frame, and then sorting, renaming, indexing, and pivoting. So these are the operations which we will apply on a data frame. So first is aggregation. Student, to apply multiple aggregate functions, we use a function aggregate. As you can see, data frame dot aggregate. Aggregate is a method which we will apply on a data frame. It is used to apply some aggregation across one or more columns. Aggregate using callable string, dictionary, list of strings, and most frequently used aggregations are sum, minimum, and maximum. These three aggregation functions are maximum used on a data frame. When we apply aggregate, with aggregate we use these three methods: sum, minimum, and maximum, and these methods are used as argument in aggregate. So the syntax of this method is data frame, name of data frame dot aggregate. Students, you can write egg for aggregate. In short, you can also write AGG, egg. There is no need to write complete aggregate, it's optional. Then function, which method, which function you want to use with this
एग्रीगेट मेथड। अब एग्रीगेट मेथड अलग है, उसके अंदर जो आप लोग आर्गुमेंट पास कर रहे हो फंक्शन, दैट इज आल्सो ए मेथड। सो one of the method you can use sum, minimum, maximum. Out of these three you can use one of these methods, or you can use all, sum, minimum or maximum. There is a facility you can enter multiple aggregation functions. So next is axis. The value of x is by default it is 0, and it is used for 0 for index, and if you have to make aggregate function on index, you have to apply on index, then the default value is 0, or 1 for column. If you have to apply aggregate function on a column, then you will pass 1 for aggregation. So let me see it with the example aggregation function on data frame using dictionary of list. For this we declare a dictionary of list in which we enter the data of an employee, his name, sale done by employee, and the year in which he sell that particular products, and the amount of sale of the year. So then we declare a variable df in which we assign the value of data frame. When you will execute this method, then it will display output like this. Now student, we apply aggregate function. We write it in short AGG. Print df is the reference of the data frame. This is reference variable ag, and make the sum. When you apply sum on aggregate, then it will apply this method, aggregate method, on complete data frame, because you know df is representing for data frame. df वेरिएबल जो है वो डाटा फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसने जितने भी उसके डिक्शनरी के कॉलम्स है सबके ऊपर उसने ये सम जो है वो अप्लाई कर दिया. दैट्स व्हाई इट्स शोइंग अ रिजल्ट लाइक दिस. इन नेम इट इज शोइंग अमित, सुमित, राजेश, अमन. इट concatenate the all names under this column. Then next is sale, total sale, sum of sale. इन सब के द्वारा जो सेल की गई उसका इसने सम कर दिया, सेल. एंड years also it is displaying years, because the years are string type, that's why it's concatenated the years also. अगर ये string type ना होते तो इसने इनका भी years का भी सम कर देना था. तो स्टूडेंट्स आपको जस्ट ये इस एग्जांपल का पर्पस ये है कि आपको समझ आ जाए कि जब मैंने एग्रीगेट सम मेथड अप्लाई किया तो वो सम जो है वो सभी के ऊपर अप्लाई हो गया, जितने भी हमारे इसके अंदर कॉलम्स थे उन सब के ऊपर ये अप्लाई हो गया सम. सो लेट वी सी आवर नेक्स्ट एग्जांपल. In previous example we apply sum method on a particular columns or a data frame, on a particular data frame. But in this example you can apply different aggregation functions across different columns. For that we need to pass a dictionary with key containing the column names and values containing the list of aggregation functions for any specific column. So let me see what happened when we execute this program. So first student, let me see what we have to do in this program. In this program we use the data frame, a previous data frame, and in this example we apply two functions, multiple functions on a particular column. For example, you can see in df1 variable we declare a dictionary. The argument is a dictionary. In aggregate function the arguments are a dictionary.
in this dictionary we apply the multiple methods, two methods on one column. For example, on sale we make the sum of sale and we find the minimum sale done by employee, salesman. Then year, the minimum value of year and the maximum value of year. Then name, sum of the name. It will concatenate all names. So when we print this df1, then it will display output like this. Now in this output you can see we use three methods: maximum, minimum and sum. In on sale, first we apply method on sale. It will make the sum of sale, and sum of sale is 19,000. In some method, in front of some method, it is showing 19,000. It means the total sale made by all salesmen is 19,000. So the next method applied on sale is minimum. Minimum sale is 1,000. सबसे कम सेल कितनी थी? 1,000. Now the year. On year we apply two methods, minimum and maximum. In minimum it is showing 2014. सबसे ईयर में सबसे कम वैल्यू क्या है? 2014. एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2017. इट मींस कि जो सेल्समैन का डाटा हमने डाला है वो 2014 और 2017 के बीच का है. मिनिमम वैल्यू इतनी है और मैक्सिमम वैल्यू 2017 है. देन वी अप्लाई सम मेथड ऑन नेम आल्सो. सम मेथड हमने सेल पे भी लगाया और हमने नेम पे भी लगाया. जब हमने नेम पे लगाया, इट हैज कॉन्कैटिनेट द नेम्स की वैल्यूज को इसने कॉन्कैटिनेट करके डिस्प्ले कर दिया. अब स्टूडेंट्स इसने नन डिस्प्ले किया है. नन मीन नॉट ए नंबर. इट मींस कि सेल के ऊपर हमने मैक्सिमम मेथड नहीं लगाया तो इसलिए नन डिस्प्ले कर रहा है. और नेम के ऊपर हमने एक्सेप्ट सम, कोई अदर मेथड हमने अप्लाई नहीं किया, ना मैक्सिमम किया ना मिनिमम किया. दैट्स व्हाई इट इज शोइंग नन फॉर मैक्स एंड मिनिमम इन नेम. नेम में ये नन शो कर रहा है. किसके लिए? मैक्स के लिए भी और मिन के लिए भी. बिकॉज मैक्स और मिन हमने नेम के ऊपर नहीं लगाया, हमने एक ही लगाया, तो उसके लिए ये नन डिस्प्ले कर देगा आउटपुट में, नॉट ए नंबर. सो लेट वी टेक next topic, that is group by. now student, group by maximum हम use करते हैं MySQL में. group by when we have to group a data, when we have to represent data in a single group, then we use group by. this function is used to split the data into groups based on some criteria. Pandas object can be split on any of their axes. You can display data in different groups. Students, हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि यहाँ पे जो नेम है वो हमने डाले हैं अमित, सुमित. डाटा फ्रेम में नेम आप देख सकते हैं अमित, सुमित, राजेश, अमन, अमित, राजेश एंड अमित. अब अमित जो है इसमें 3 बार आया, तो हम अमित नेम के अकॉर्डिंगली इसका ग्रुप बना सकते हैं कि अमित नाम का एक ग्रुप बन गया. सुमित तो रिपीटेड है ही नहीं है, राजेश रिपीटेड है तो राजेश 2 जगह है तो एक ही बार आ जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा राजेश का. देन अमन भी रिपीटेड नहीं है, तो इसमें जो है वो हमारे जो अमित, अमन, सुमित, राजेश, हमारे इसके 4 ग्रुप बनेंगे इस एग्जांपल में. अगर हम इसी को लें तो उसमें हमारे 4 ग्रुप बनेंगे. 4 ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली ये डाटा जो है वो डिस्प्ले कर देगा व्हेन वी अप्लाई ग्रुप बाय. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंड. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द ग्रुप बाय. यू कैन अप्लाई ग्रुप बाय ऑन ए सिंगल की. यू कैन अप्लाई ग्रुप बाय ऑन मल्टीपल कीज, or you can apply group by on key or on axis, column or row.
So let us now see how the grouping objects can be applied to the data frame object. The first example, group by on data frame using dictionary of list. स्टूडेंट्स हमने सेम प्रोग्राम ले लिया, सेम डाटा ले लिया, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है हमारे पास, डिफरेंट एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड है. सो फर्स्ट वी प्रिंट द डाटा फ्रेम. जब हमने डाटा फ्रेम को प्रिंट किया तो इसकी आउटपुट हमारे पास ये आ गई. तो जो फर्स्ट प्रिंट डीएफ मैंने लिखा, जो डाटा फ्रेम की वैल्यूज है वो इसने यहां डिस्प्ले कर दी टेबुलर फॉर्म में. जो सेकंड वैल्यू आ रही है प्रिंट डीएफ ग्रुप बाय नेम, नेम के अकॉर्डिंगली हमने इसको ग्रुप करना था, बट इसने जो है ये आउटपुट डिस्प्ले कर दी जो कि हमें समझ नहीं आ रही है. ठीक है, पांडा स्कोर ग्रुप बाय जेनरिक डाटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स तो इसके लिए हमें एक और कमांड यूज करनी पड़ेगी. उसमें हम नेम के साथ लिखेंगे ग्रुप्स, df group by name in groups. Then it will display this output. First it will show the data frame because we use simple print df command. It will display, it will print the data frame in tabular form. Then the output of group by name dot groups, it will display groups. First group is Aman and its index value is 3, it is on third index. And then second is Amit, it is on 0 index, 4th index and on 6th index. तीन जगह अमित रिपीट हो रहा है. एक तो ये स्टार्टिंग में था, 0 इंडेक्स इसमें डिस्प्ले नहीं हो रहा, 0 इंडेक्स पे भी अमित था और 4th इंडेक्स पे भी अमित है और 6th इंडेक्स पे भी अमित है. तो तीनों वैल्यूज ये यहाँ पे उसकी डिस्प्ले कर रहा है. देन राजेश जो है वो सेकंड पे है और 5th पे है. एंड सुमित उसका एक ही है रिकॉर्ड, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर डिस्प्ले कर रहा है. सो स्टूडेंट इस तरह से ये ग्रुप को डिस्प्ले करेगा कि ग्रुप वैल्यू उसकी क्या है और उसके अकॉर्डिंगली वो उसको डिस्प्ले कर रहा है, इंडेक्स वैल्यूज उसकी शो कर रहा है. सो लेट वी टेक आवर थर्ड एग्जांपल ऑन ग्रुप बाय नेम and we apply aggregate function with name and group by year. So now you can see first we display the data frame, then we group by name. अब name के accordingly हमने ग्रुप कर दिया और उसके ऊपर हमने सम फंक्शन लग दिया. सपोज जैसे अमित है, अमित ने, अब अमित का रिकॉर्ड 3 जगह आ रहा है तो अमित ने फर्स्ट रिकॉर्ड पे जो सेल है वो 2000 सेल की पहले उसने 2014 में. फिर अमित का रिकॉर्ड जो है वो 4th इंडेक्स पे भी आ रहा है तो वहां पे उसने 5000 सेल की 2015 में और उसके बाद अमित का रिकॉर्ड 6th इंडेक्स पे आ रहा है, वहां पे उसने 3000 सेल की 2016 में. तो हमने डिफरेंट ईयर्स में उसने कितनी सेल की उसका टोटल करना है, तो उसके लिए हमने उसकी ग्रुपिंग कर दी अकॉर्डिंग टू नेम और उसके ऊपर हमने सम लगा दिया. तो फर्स्ट एग्जांपल में आप इसको देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुपिंग इसने की है नेम के अकॉर्डिंगली की है. अमन की टोटल सेल है 3000, अमित की है 10,000, राजेश की 2000 और सुमित की 4000. ये ग्रुपिंग सर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू नेम. देन हमने फिर ग्रुपिंग की अकॉर्डिंग टू ईयर कि हमने ये चेक करना है कि 2014 में हमारी सेल कितनी थी, 2015 में, इट डजंट मैटर कि किसने की वो. अब हमने ईयर के अकॉर्डिंगली अपनी सेल को देखना है तो ईयर के अकॉर्डिंगली हमने सम फंक्शन अप्लाई कर दिया. तो ईयर के अकॉर्डिंगली 2014 में हमारी जो सेल हुई वो 3000 थी. इट डजंट मैटर कि वो किसके द्वारा थी, कौन था सेल्समैन, क्योंकि हमने इस बार ईयर के ऊपर लगाई. पहले हमने ग्रुपिंग की थी नेम के अकॉर्डिंगली कि अमित ने कितनी टोटल कितनी सेल की है डिफरेंट ईयर्स में. अब हम कर रहे हैं कि एक ईयर में टोटल कितनी सेल हुई है उसके अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग की है. और स्टूडेंट हमने दोनों पे सम फंक्शन लगाया. आप इस पे मैक्सिमम भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम किसने की है और हर एक की ग्रुप वाइज मैक्सिमम कितनी सेल है, अमन की मैक्सिमम सेल कितनी है, अमित की कितनी है, आप इस तरह से देख सकते हैं या मिनिमम लगा सकते हैं.
तो आप वही 3 फंक्शन इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इटरेटिंग थ्रू ग्रुप्स। अब ग्रुप्स के ऊपर हम इटरेशन फंक्शन भी लगा सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। इटरेटिंग मीन लूपिंग। लूप में क्या होता है कि पहले फर्स्ट रिकॉर्ड, फिर सेकंड रिकॉर्ड, फिर थर्ड रिकॉर्ड। उसी तरह से फर्स्ट ग्रुप अमित का ग्रुप है या अमन का ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, देन सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप। ईयर वाइज फर्स्ट ईयर 2014 का ग्रुप, 15 का ग्रुप, 16 का ग्रुप, 17 के ग्रुप। तो डिफरेंट ग्रुप वाइज आप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे हमने इस एग्जांपल में किया है, हमने एक वेरिएबल लिया ग्रुप्ड, जिसके अंदर हमने ग्रुप वाई करके उसको वैल्यू जो असाइन कर दी। अब नेम को हमने नेम के अकॉर्डिंगली इसको ग्रुप बाय किया और ग्रुप के अंदर चली गई और उसके ऊपर मैंने नेस्टेड लूप लगा दिया फॉर i, j इन ग्रुप्ड। अब फर्स्ट ये ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप को उठाएगा, फिर उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। अब जैसे फर्स्ट प्रिंट डीएफ से ये आउटपुट आ गई, वही उसने डाटा फ्रेम को टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया। देन फॉर i, j in grouped print I, it will take the first value that is अमन। इसने अल्फाबेटिकली उसको अरेंज कर लिया अमन, और अमन ग्रुप की वैल्यूज को जो प्रिंट j है, ये फर्स्ट ग्रुप को फिर ये सारी वैल्यूज उसकी प्रिंट कर रहा है। तो उसमें है ही एक रिकॉर्ड है और वो थर्ड इंडेक्स के ऊपर वो रिकॉर्ड है और उसको ये डिस्प्ले कर रहा है। अल्फाबेटिकली सेकंड जो है वो अमित आ गया। अब अमित के रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है इसमें, तो सेकंड प्रिंट आई जो मैंने सेकंड टाइम किया, तो अब इसने आई जब अपने सेकंड टर्म में गया तो उसने वहां से अमित को उठा लिया। नेक्स्ट जो उसकी वैल्यू थी वो अमित है और अमित के इसने डिफरेंट इंडेक्स में क्या क्या वैल्यूज है 0, 4, 6 पे है और उसका डाटा उसने डिस्प्ले कर दिया। देन राजेश के डाटा, राजेश थर्ड ग्रुप हमारा राजेश बन रहा है तो राजेश का डाटा डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट ग्रुप सुमित बन रहा है तो सुमित का डाटा डिस्प्ले कर दिया। तो अगर सुमित नाम के भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते तो वो सारे आ जाने थे। अब सुमित सिंगल ही है तो सिंगल, अल्फाबेटिकली ये इसकी वैल्यूज को अरेंज कर रहा है। सो स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इटरेटिंग में क्या किया इसने। जब हमने ग्रुप्स के ऊपर इटरेशन लगाया तो वहां पे हमने लूप अप्लाई कर दिया और उस जो डिफरेंट ग्रुप्स बने, तो पहला ग्रुप उठाया और पहले ग्रुप के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिए, फिर सेकंड ग्रुप उठाया, सेकंड ग्रुप के सारे रिकॉर्ड उसने डिस्प्ले कर दिए। सो दिस इज द इटरेटिंग ऑन ग्रुप्स। नेक्स्ट है एग्रीगेशन फंक्शंस ऑन ग्रुप्स। अब स्टूडेंट ग्रुप्स के ऊपर हमने एग्रीगेशन फंक्शन लगाने। एग्रीगेट फंक्शंस कौन से हैं? वही मैक्सिमम, मिनिमम, सम, काउंट एटसेट्रा। तो एग्रीगेशन फंक्शंस हम ग्रुप्स के ऊपर किस तरह से लगा सकते हैं? यू नो एन एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न्स ए सिंगल एग्रीगेटेड वैल्यू। अब जैसे एग्रीगेट फंक्शन मैक्सिमम है तो मैक्सिमम मल्टीपल रिकॉर्ड में से मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा, सिंगल आउटपुट देगा, सिंगल एग्रीगेटेड वैल्यू हो जाएगी वो। अब हर एक ग्रुप की सिंगल वैल्यू वो डिस्प्ले कर रहा है। वंस द ग्रुप वाई ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, सेवरल एग्रीगेशन ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द ग्रुप्ड डाटा। अब हमने ग्रुप वाई के साथ अब हमने एग्रीगेशन को यूज करना है। सेम एग्जांपल है हमारे पास, इसके अंदर हमने सेम वही ग्रुप उठाया, नेम वाइज हमने उसकी ग्रुपिंग की। अब इसके ऊपर नेम के ऊपर नेम वाइज जो ग्रुप बने उनकी सेल का हमने मैक्सिमम निकालना और उनका सम करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए हमने ग्रुप्ड के साथ एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर दिया, जिसके अंदर numpy एरे हमने यूज किया। वो वेरिएबल np, it will represent numpy type variable we have np, then we apply aggregate function। अब सेल के ऊपर हमने मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई कर दिए। व्हेन वी प्रिंट द ग्रुप देन इट विल डिस्प्ले वैल्यू। नाउ यू कैन सी, अब अमन ने कितनी सेल की? मैक्सिमम 3000 और सम भी कितना है 3000। और अमित की
सेल का सम कितना है 10,000, और अगर आप इंडेक्स नंबर 046 के ऊपर जो सेल हुई है उनका सम करें तो ये 10,000 बनेगा। और इसमें मैक्सिमम कितनी थी 5,000, मैक्सिमम सेल कितनी की थी उसने 5,000। तो क्योंकि हमने दो फंक्शन ही लगाया है, अगर आप मिनिमम भी साथ लगाते तो उसने मिनिमम भी बता देनी थी। जितने एग्रीगेट फंक्शन आप इसमें लगाओगे उतने ये डिस्प्ले करेगा। अब एग्रीगेट मैंने पहले भी डिस्कस किया कि एग्रीगेट में हम पैरामीटर्स क्या पास करते हैं, वो भी फंक्शन ही पास करते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन एक अलग से फंक्शन है, उसका नाम ही एग्रीगेट है, और उसके अंदर हमने पैरामीटर क्या पास किए, उसके अंदर हमने एग्रीगेट फंक्शंस जो है वो पास कर दिए, सम और मैक्स। देन राजेश के दो रिकॉर्ड थे और उनका सम जो है वो 2000 हुआ एंड द मैक्सिमम इज 1000। देन सुमित का एक ही रिकॉर्ड है, उसका सम 4000 हो गया और मैक्सिमम भी 4000 हो गया। सो स्टूडेंट इस तरह से हम ग्रुप करके और उसके ऊपर हम एग्रीगेट फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, ग्रुप वाई के साथ एग्रीगेट फंक्शंस। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज sorting. Students, we already done this topic sorting when we discuss data frame, then I explain it sorting. You know what is sorting? Sorting is the arrangement of data in a particular order. When we have to arrange data in particular order, then we apply sorting. Now you know we have two orders, ascending order or descending order. You can arrange data in ascending order or descending order. What there is two kinds of sorting. You can apply sorting on a data frame according to values, according to index. You know data frame में एक index हमेशा रहेगा और आप index के accordingly sorting कर लो, या आप उस डाटा फ्रेम की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली उसकी sorting कर लो। हम दो तरह से इसके ऊपर sorting अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज sort value method. It sorts the data of given column in ascending or descending order. अब जो भी हम यहाँ पे sort value के साथ हमारा बाय है, बाय के अंदर हम जिस भी कॉलम का नेम पास करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो उसको ascending और descending में अरेंज कर देगा। ascending is equal to true, then it will arrange data in ascending order. If ascending is equal to false, if the value false is assigned to ascending, then it will arrange the data in descending order. अब दोनों में पैरामीटर असेंडिंग ही पास हो रहा है लेकिन उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगी। अगर असेंडिंग की वैल्यू ट्रू है देन इट विल अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इफ द वैल्यू ऑफ असेंडिंग इज फॉल्स देन इट विल अरेंज डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और बाय के अंदर हम उसके कॉलम का नेम पास करेंगे और एक्सिस जो है दैट इज आल्सो यूज्ड फॉर कॉलम्स एंड रोज। सो लेट वी सी, मेन थिंग इज बाय एंड असेंडिंग। Now you can see this example. There is a data frame of a student in which we assign the roll numbers, names and the subject marks of different subjects and we make the total. हमने टोटल और परसेंटेज इसकी कैलकुलेट कर दी, रिजल्ट शीट हमने डिजाइन कर दी। अब हमने उसकी sorting करनी है, हमने परसेंटेज के अकॉर्डिंगली डाटा का अरेंजमेंट करना है। Sort by value, by is equal to percentage and name, परसेंटेज के अकॉर्डिंगली और नेम के अकॉर्डिंगली। और ऑर्डर क्या है, ascending is equal to false, it mean it will arrange the data in descending order according to percentage and according to name। अब मान लो दो बच्चों की परसेंटेज सेम हो गई तो फिर वो क्या करेगा, किसका रिकॉर्ड पहले दिखाएगा, फिर हमने नेम के अकॉर्डिंगली उसकी अरेंजमेंट कर दिया कि वो भी किसके अकॉर्डिंगली है, उसको भी हमने फॉल्स वैल्यू दी है तो सेकंड पैरामीटर भी फॉल्स है तो उसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करेगा। तो इसको आउटपुट आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट हमने डाटा फ्रेम को डिस्प्ले कर दिया, आफ्टर दैट डाटा फ्रेम आफ्टर sorting। अब हमने इसकी sorting की है परसेंटेज के अकॉर्डिंगली, किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है, रोल नंबर 2 की, देन उससे कम 69 है रोल नंबर 3, देन रोल नंबर 5, रोल नंबर 1 and roll number 4. Now you can see students there is percentage of 5 and 1, roll number 5 and 1, that is Radhika and Amit,
परसेंटेज इज सेम 62.0। अब स्टूडेंट सेकंड जो मैंने इसमें sorting की है नेम के अकॉर्डिंगली, तो नेम के अकॉर्डिंगली कब कर रहा है, जब वो परसेंटेज दोनों की सेम आ गई। अब वो करेगा नेम के अकॉर्डिंगली, कि नेम के अकॉर्डिंगली डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब राधिका की वैल्यू स्काई वैल्यू ज्यादा है, बड़ी है, तो उसको पहले डिस्प्ले कर रहा है। अमित की स्काई वैल्यू कम है तो उसका रिकॉर्ड पहले डिस्प्ले बाद में डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम उसको ट्रू कर दें तो अमित का रिकॉर्ड ऊपर चला जाएगा और राधिका का रिकॉर्ड नीचे आ जाएगा। So this is the sorting according to the values of a data frame. Now the next is sorting according to the index. अब index पे तो बहुत easy है, index की sorting करनी है, या तो वो ascending by default तो वो ascending order में ही होता है, उसको आपने descending में करना है, ascending is equal to false कर दो। तो यहाँ पे हमने ascending is equal to false कर दिया, बाकी सारा डाटा फ्रेम वैसा ही है, जस्ट हमने मेथड चेंज किया। मेथड में हमने लिख दिया sort इंडेक्स देन ascending is equal to false। अब ascending is equal to false किया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप देखो तो 4 3 2 1 0, पहले जो है इसने डाटा फ्रेम डिस्प्ले किया कि डाटा फ्रेम कौन सा है, ये वाला डाटा फ्रेम है, और उसकी sorting की हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू इंडेक्स जो है वो उसकी sorting कर दी। सो स्टूडेंट ये तो बहुत इजी है, sorting अकॉर्डिंग टू इंडेक्स। नेक्स्ट है रीनेमिंग इंडेक्स। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडेक्स को रीनेम करना है। अब इंडेक्स की वैल्यू क्या आ रही है 0 1, अब आपने इसको रीनेम करना, आप चाहते हैं कि 0 की जगह डिजिट ना आए, only 1 लिखा हुआ आ जाए, तो उसके लिए यू कैन यूज मेथड रीनेम। रीनेम मेथड विद डाटा फ्रेम वी राइट रीनेम इंडेक्स इज इक्वल टू, हमने इसकी डिक्शनरी डिक्लेयर कर दी कि यहाँ पे 0 है वहां पे 1 लिखा हुआ आ जाए, only 1, यहाँ पे 1 है वहां पे 2 आ जाए, क्योंकि इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट होगा बाय डिफॉल्ट, तो 0 को मैंने 1 लिख दिया, या आप ZERO लिख लो यहाँ पे 0, या 1 को आप only 1 लिख लो, तो मैंने इसको इस तरह से डिस्प्ले किया है। ये इंडेक्सिंग इसकी इस तरह से कर देगा। सेकंड रीनेम है कॉलम्स को रीनेम करना आपने, ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम का नेम आ रहा है, ये नेम है, तो हमने उसको कर दिया एम्प्लॉय नेम। सेकंड जो सेल है उसको मैंने रीनेम कर दिया सेल बाय एम्प्लॉय, और ईयर को मैंने कर दिया सेल ईयर। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट आउटपुट जो मैंने फर्स्ट प्रिंटफ लगाया जिसमें मैंने इंडेक्स की वैल्यू को चेंज किया, तो 0 की जगह 1 कर दिया तो 1 आ रहा है, उसके बाद मैंने 0 की जगह 1 की जगह 2 लिख दिया, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ रहा है TWO। तो इस तरह से आप बाकी इंडेक्स भी चेंज कर सकते हैं, 2 की जगह 3 लिख दो, 3 की जगह 4 लिख दो, डिजिट 3 की जगह स्ट्रिंग में THREE लिख दो, तो इस तरह से ये इसकी वैल्यूज को रीनेम कर देगा बाय यूजिंग रीनेमिंग मेथड। सेकंड आउटपुट में आप देख सकते हैं कि मैंने नेम को एम्प्लॉय नेम किया, तो उसका लेवल जो है वो चेंज हो गया, अब वहां पे लिखा हुआ आ रहा है एम्प्लॉय नेम। और नेक्स्ट कॉलम में सेल था हमारा, यहाँ पे सेल था और वहां पे लिखा हुआ आ रहा है सेल बाय एम्प्लॉय, और थर्ड जो कॉलम है वो था ईयर, वहां पे मैंने कर दिया सेल ईयर। तो इस तरह से आप कॉलम को रीनेम कर सकते हैं या इंडेक्स को रीनेम कर सकते हैं। इंडेक्स मीन रो। नेक्स्ट है हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज इन ए डाटा फ्रेम। अब स्टूडेंट हमारे डाटा फ्रेम में मिसिंग वैल्यू भी हो सकती है। मिसिंग वैल्यू मीन जैसे मैंने क्लास नहीं डाली, अब यहां पे इस एग्जांपल में स्टूडेंट मैंने CSV फाइल यूज की है। CSV फाइल में स्टूडेंट ये मेरी CSV फाइल है जिसको मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो इस एग्जांपल में मैंने CSV फाइल में जो क्लास है उसको एम्प्टी छोड़ा हुआ था। अब यहाँ पे तो मैंने 12 डाल दिया 2 जगह, लेकिन पहले जब मैंने ये एग्जांपल की थी
तो प्रोग्राम डिजाइन किया तो उस टाइम ये बिल्कुल खाली था, तो यहाँ पे मेरी CSV फाइल में वैल्यू जो है वो नल वैल्यू है। आप जब वहां पे नल वैल्यू है देन इट विल डिस्प्ले नन, नॉट ए नंबर, इट विल डिस्प्ले नन। अगर किसी और फील्ड में भी वैल्यू हम ना डालें वहां पे तो उसको भी ये नन डिस्प्ले करेगा। तो अब उसकी जगह मैं चाहता हूं कि 12 आ जाए। फॉर दैट वी यूज fill na मेथड। fill na मेथड, fill ना मेथड इज यूज टू fill वैल्यू इन ए एम्प्टी कॉलम। जिस कॉलम में नन है, नन के अंदर वो 12 डिस्प्ले कर देगा बाय यूजिंग fill na मेथड। ये देखो स्टूडेंट्स, ये पहले आउटपुट फर्स्ट प्रिंट एफ की आउटपुट आ गई, जो मैंने फर्स्ट प्रिंट df यूज किया तो उसने डाटा फ्रेम को डिस्प्ले कर दिया और क्लास के अंदर ही इसने नॉन डिस्प्ले किया है क्योंकि वहां पे मैंने वैल्यू नहीं डाली हुई है। अब उसके बाद मैंने लिख दिया fill na मेथड विद प्रिंट स्टेटमेंट आई हैव यूज्ड fill na मेथड एंड पास द वैल्यू 12। स्टूडेंट क्योंकि ये वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप है तो आउटपुट में ये फ्लोट टाइप वैल्यू डिस्प्ले करेगा यहाँ पे 12.0। अगर आप चाहते हैं कि ये 12 ही डिस्प्ले करे, 0.0 ना दे, तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग टाइप बना दो, इसको कोटेशन में पास कर दो 12, तो ये स्ट्रिंग टाइप में वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। सो स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि fill na मेथड क्या करेगा। ये एम्प्टी वैल्यूज यहाँ पे है, वहां पे ये वो पर्टिकुलर वैल्यू फिल कर देगा। ऊपर मैंने रीड CSV यूज किया जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, CSV फाइल को रीड करना, तो उसका पाथ दिया हुआ है कि यहाँ पे मेरी CSV फाइल पढ़ी है और उसको उठाया और यहाँ पे नॉन वैल्यू थी, वहां पे इसने 12 फिल कर दिया। अब स्टूडेंट अगर किसी और कॉलम में भी नॉन वैल्यू होती तो वहां भी इसने 12 ही फिल कर देना था। मान लो कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स हमने नहीं डाले हैं किसी स्टूडेंट के, तो उसने वहां भी 12 ही फिल कर देना था। जितने भी उसको नॉन कॉलम मिलना था या नॉन रिकॉर्ड मिलना था वहां पे इसने 12 फिल कर देना था। सो दिस इज अ सिंपल fill na मेथड। सेकेंड, अब हम अगर हमने एक पर्टिकुलर क्लास में ही फिल करना है, अब जो मेरा क्लास वाला कॉलम है उसी में मैंने फिल करना है, बाकी जो है उस पे फिल ना हो, तो उसके लिए मैंने पहले यूज किया df क्लास डॉट fill na 12 इन प्लेस ट्रू, उसी प्लेस के ऊपर वो फिल करे, यहाँ पे उसको क्लास के अंदर नॉन वैल्यू मिलती है वहां पे वो 12 फिल कर दे, और उसके बाद मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। अब इसमें इस एग्जांपल में आप देखो इसकी आउटपुट में फर्स्ट प्रिंट df ये जो नॉन के साथ डिस्प्ले कर रहा है। अब इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे केमिस्ट्री में भी मैंने नॉन लिखा था, केमिस्ट्री भी एम्प्टी छोड़ा हुआ था, एक पर्टिकुलर रोल नंबर का, रोल नंबर 3 के केमिस्ट्री के मार्क्स मैंने नहीं डाले थे तो वहां भी नॉन आ रहा था। तो फर्स्ट प्रिंट एफ कमांड जो है वो यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रही है। सेकंड, फिर मैंने उसमें fill na कर दिया 12, तो जब मैंने 12 किया तो सेकंड में आप देखो कि क्लास में तो 12.0 आ रहा है लेकिन केमिस्ट्री के मार्क्स जो रोल नंबर 3 के थे वहां भी 12.0 इसने फिल कर दिया। और देन थर्ड प्रिंट एफ, अब मैंने किया मेथड पैड। स्टूडेंट एक याद रखना fill na के अंदर हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं मेथड इज इक्वल टू पैड और मेथड इज इक्वल टू बी फिल या बी फिल मेथड होता है एक। अब इन दोनों में क्या है, पैड जो प्रीवियस वैल्यू, अब मैंने यहाँ पे क्लास के अंदर मैंने फिल किया 12 आ जाए लेकिन केमिस्ट्री के अंदर नॉन ही रह गया, जो मेरी df क्लास डॉट fill na 12 इन प्लेस ट्रू था, तो सिर्फ यहाँ पे क्लास वाले कॉलम में इसने 12 फिल कर दिया, अब इसमें नहीं किया क्योंकि मैंने fill na के साथ इन प्लेस को यूज किया हुआ है और क्लास के साथ उस पर्टिकुलर को डिस्प्ले किया हुआ है। और उसके बाद fill na प्रिंट के साथ मैंने fill na मेथड पैड डिस्प्ले किया, पैड मीन प्रीवियस वैल्यू, जो उसकी प्रीवियस वैल्यू जो लास्ट में पिछले रिकॉर्ड के केमिस्ट्री के मार्क्स कितने थे 55, तो इसके भी 55 फिल कर दिए। अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वाले के कितने 89 ही इसमें फिल करने हैं, तो उसके लिए आप पैड की जगह बी फिल लिख दो, बी फिल,
इकट्ठा लिखना है बी फिल, तो नेक्स्ट के रिकॉर्ड इसमें आ जाएगा, नेक्स्ट के मार्क्स इसमें आ जाएंगे। तो प्रीवियस के लिए पी एड दैट इज पैड, और सेकंड के लिए बी फिल आप लिखोगे, तो नेक्स्ट के रिकॉर्ड नेक्स्ट का वैल्यू जो है यहाँ पे इसने नन में डिस्प्ले कर देना था। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट ड्रॉपिंग मिसिंग वैल्यूज ऑफ रोज। अब जिन रोज की वैल्यू मिस है कहीं भी, किसी भी रिकॉर्ड की किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू मिस है, तो हमने उसको डिलीट करना है। तो उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं ड्रॉप एनए। ड्रॉप एनए मेथड इज यूज टू डिलीट द value of a particular record where the value is na. It is used to delete the particular record where the value is na. none, यहाँ पे none वैल्यू है, empty वैल्यू है, उस रिकॉर्ड को वो डिलीट कर दे। अब जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हो, मैंने इस पे लगा दिया ड्रॉप एनए। अब स्टूडेंट इसके तो हर एक रिकॉर्ड में एनए नॉन वैल्यू आ रही है। अब फर्स्ट क्योंकि पूरी क्लास ही हमने नहीं डाली हुई है, तो हर एक रिकॉर्ड में नॉन वैल्यू आ रही है, इसलिए इसने सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, एम्प्टी कर दिया डाटा फ्रेम को। लो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ड्रॉपिंग कॉलम्स विद एटलीस्ट वन नल वैल्यू। जिस कॉलम में एक भी रिकॉर्ड में नल वैल्यू आए, उसको पूरे कॉलम को डिलीट कर दे। अब हमने सिंपल इसमें क्या किया, एक्सिस इज इक्वल टू 1 कर दिया, एक्सिस इज इक्वल टू 1, वो पूरे का पूरा कॉलम ही वो डिलीट कर देगा। अब जैसे यहां पे अब क्या हुआ, अब एक तो क्लास ड्रॉप हो गई क्योंकि उसमें नॉन वैल्यू आ रही है, दूसरा केमिस्ट्री ड्रॉप हो गया क्योंकि केमिस्ट्री के एक रिकॉर्ड में यहाँ पे नॉन वैल्यू आ रही है, तो इसलिए इसने पूरे का पूरा ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप एन एक्सिस इज इक्वल टू 1। सेकेंड, अगर आपने पूरा कॉलम डिलीट नहीं करना है, पूरी की पूरी रो डिलीट करनी है। अब स्टूडेंट मैंने 2-3 रिकॉर्ड में 12 मैन्युअली फीड कर दिया, नहीं तो इसने यहां भी सारे रिकॉर्ड उठा देने थे क्योंकि हर एक रिकॉर्ड में आ जाना था नॉन। तो यहां पे अब मैंने सिर्फ एक रिकॉर्ड रखा, यहां पे नॉन वैल्यू आ रही है, इसकी क्लास में भी नॉन है और केमिस्ट्री में भी नॉन है। तो उसके लिए मैंने लिखा एक्सिस इज इक्वल टू 0, हाउ इज इक्वल टू एनी। इसमें 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, एक हाउ पैरामीटर है और दूसरा एक्सिस। एक्सिस इज इक्वल टू 0 उस इंडेक्स को, क्योंकि 0 जो होता है वो इंडेक्स के लिए होता है, उस पूरे इंडेक्स को रिमूव कर देगा ये, ठीक है। हाउ इज इक्वल टू एनी, पूरे का पूरे जहां भी इसको मिलता है पूरे का पूरा रिकॉर्ड रिमूव कर दे ये। तो जब इसकी आउटपुट है ये देख लो आप, तो इसने 1, 2, 3rd इंडेक्स को इसने रिमूव कर दिया। यहाँ पे राजन का रिकॉर्ड था और वहां पे क्लास में नन था और केमिस्ट्री में नन था, इसने दोनों को रिमूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि एक इंडेक्स को कैसे रिमूव करना है, इंडेक्स के अकॉर्डिंगली डाटा को कैसे रिमूव करना है, और कॉलम की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली कैसे इसको रिमूव करना है। सो दिस इज द data handling using pandas. Now in next lecture we will discuss import and exporting data between MySQL database and pandas. So students, thank you.